So guys, today we are going to continue our chapter morphology of flowering plants, and we have already done about the roots. Right, we have talked about a little about morphology, what it is and how it is associated with plants and animals. And the very first topic that we have covered yesterday's video is about roots. In this we have talked about importance of roots, we have talked about parts, and we have also discussed about modifications. तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी थी, what are they and how they are useful, right? So let's see with another topic today, and today's topic is going to be about stems. Okay, so stem basically stem जो हमारा outer structure होता है plant का वो होता है, यानी कि for example like we used to see this is in our soil layer and here we have a plant. ठीक है, so this area and here it has a roots. Okay, so what happened, we usually define some specific parts. So this part we have yesterday discussed it, that is root, and this above the soil part is known as your stem. Stem is basically this area, the orange colored area that you can see. तो स्टेम में बहुत सारी सब पार्ट्स भी आते हैं, लाइक वी हैव आवर ब्रांचेस, लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, सो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर स्टेम. बेसिकली फंक्शन अगर हम स्टेम की बात करें, सो इट हैज़ अ प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल. जो रूट हमारा एब्जॉर्व करती है वो ये बॉडी प्लांट की अदर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र करता है, राइट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट. सो अगर हम नेक्स्टली इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, सो वी हैव दैट इट हैज़ अ नोड्स एंड इंटरनोड्स. अब ये नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होते हैं, आपने यू मस्ट हैव सीन अबाउट द शुगर केन्स. शुगर केन्स कैसे होते हैं, कुछ ऐसे वर्टिकल लाइक लॉन्ग structures, and herein we have these kind of divisions. So specifically what happens, you have these internodes. Okay, these are your internodes. What are the internodes? After these internodes you do have some center like structure on these internodes, so they are known as nodes, राइट. सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो इसी तरीके की यानी कि स्टेम में भी आपको नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, मॉडिफिकेशंस की बात करने, सो वी हैव अ फोर काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन दैट इज जनरली ऑब्जर्व्ड. फर्स्ट वन इज फॉर स्टोरेज, लाइक वी हैव पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक. सो दीज आर योर स्टेम स्ट्रक्चर्स एंड दे आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज. For supportive nature or helpful modification, we have tendrils on cucumber plant का जिसने देखा होगा, pumpkin and watermelon. So they are like having some outly like vein like structures. So ये क्या है, tendrils हैं जो कि wall को support देते हैं. They get stuck into wall. Like if you have seen about the plant of bougainvillea or the money plant, you must be seeing these tendrils there. For protections, these stems are modified into form of thorns, and these thorns are very helpful in protection from various animals. Talking about vegetative propagation, so we have tubers and rhizomes in potato. तो बेसिकली ये क्या होता है, ये ट्यूबर्स होते हैं, स्मॉल आई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आई और पोटैटो में और जिंजर में स्पेसिफिकली, जो कि यूज़फुल होते हैं, राइट. सो दैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको पता ही है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो इट इज़ सेम एज टॉकिंग अबाउट द आई ऑफ पोटैटो एंड जिंजर. तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन स्टेप में है नहीं. आपको एनसीईआरटी अगर आप मुझे चाहते हो दैट आई शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटी सीरीज, सो आफ्टर गिविंग दीज स्पेसिफिक नोट्स आई विल बी गोइंग थ्रू दोज एनसीईआरटी notes also. These are your to the point notes. Okay, so you will be very helpful when you are studying these notes. Okay, coming to leaf. Leaf is important structure as it performs photosynthesis for plant, the most important function for survival. So ये photosynthesis करता है, right? तो photosynthesis करता है, so it has some specific kind of a structure also. लाइक अगर हम इसकी बेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो वी हैव अ लीफ बेस, वी हैव अ पेटियोल एंड अ लैमेला.
अगर अब हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम एक लीफ ड्रॉ करते हैं सिंपल ऐसी, मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमारी बेसिक लीफ स्ट्रक्चर है। अब आपको लीफ बेस क्या है ये मैं बताऊंगी, 1 2 आप करके देख सकते हो जैसे पॉइंट्स में लिखा। सो दिस इज योर लीफ ब्लेड, ओके। लीफ ब्लेड स्ट्रक्चर है एंड दैट दिस इज योर पेटियोल एंड दिस लाइनिंग इज लमाइला, ओके। सो आई गेस इट इज क्लियर। वीन्स जो होती हैं लीव्स में वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लीव्स में अगर वाटर की कोई भी स्कैरसिटी हो जाती है, सो इट इज़ नॉट पॉजिटिव साइन फॉर अ प्लांट, क्योंकि अगर लीव हमारी ड्राई हो जाएंगी सो इट विल बी लूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ प्लांट, राइट। अब देखते हैं कि एक टर्म आता है वेनेशन। तो वेनेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ जो वीन्स होता है वो कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कह रहे हैं कि ये कोई लीफ है, ठीक है, ये हमारा लीफ स्ट्रक्चर है। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, सो लेट मी ड्रॉ वंस अगेन। ये हम अगर कह रहे हैं लीफ है एंड वी हैव दिस लीफ हियर, और लीफ के स्ट्रक्चर में हम कह रहे हैं कि ये वीन्स का सिंपल अरेंजमेंट है। तो ये हमने वीन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो वीन्स हैं हमारी, इनका अरेंजमेंट कैसा है। जैसा स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा उसे ही हम अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेशन। क्या कहते हैं? वेनेशन, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मोनोकॉट्स होते हैं जिनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो वेनेशन का अगर आप बात कर रहे हो पैरेलल वेनेशन, तो आपने क्या कहा है कि बेनियान की लीफ सबने देखी होगी। तो ये कैसे होती है, ऐसे राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेनियान लीफ का, बट जो इसका आप अगर अंदर देखते हो तो ये ऐसे सीधे सीधे इसमें पार्ट होते हैं, ऐसे लीफ सीधी सीधी इसमें ऐसे लाइंस होती हैं। सो दैट इज़ योर पैरेलल वेनेशन। पैरेलल मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल बनता है अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो इट इज़ योर पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन के अगर बात करें तो ये डाइकॉट्स में मिलता है। रिमेंबर, मोनोकॉट्स में आपको पैरेलल वेनेशन मिलता है, रेटिकुलेट आपको मिलता है डाइकॉट्स में। मैंगो होता है, यू मस्ट हैव सीन मैंगो एंड लीफ ऑफ मैंगो ट्री, यू मस्ट हैव सीन। तो आप उसको कभी ऑब्जर्व करें। नाउ दिस इज अ सीजन ऑफ मैंगो ऑल्सो, यू विल बी इजली गेटिंग द लीव्स, एंड इफ इट इज़ नॉट द सीजन यू विल बी हैविंग ए प्लांट अराउंड यू, यू कैन चेक आउट देयर। आप ये देख सकते हो, राइट। अब लीफ हमारी सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। कंपाउंड एंड सिंपल लीफ हो सकती हैं। अब आप पूछोगे कि मैम कैसे, ये तो आपने बहुत अजीब सी चीज़ बता दी कि सिंपल भी हो सकती है कंपाउंड भी हो सकती है। ये तो कोई मैथ्स का फॉर्मूला है नहीं कि ये सिंपल आपका ये हो गया और कंपाउंड आपका ये हो गया। तो ये क्या, आप किस बारे में बात कर रही हैं मैम, अच्छे से समझाइए। तो अगर आप देखते हैं कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, कि लीव्स जो हैं वो हमारी स्टेम पर किस तरीके से अरेंज हुई हैं, उस पैटर्न को हम कहते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी हम कहते हैं किसको? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन अ स्टेम, मतलब स्टेम पर लीफ कैसे अरेंज है उसको हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। वी हैव 3 काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी दैट वी यूजुअली ऑब्जर्व। सो अल्टरनेट मैनर में होती है, यानी कि एक इस साइड होगी तो दूसरी इस साइड होगी, राइट। एक ही तरफ लीफ नहीं होती है, ऊपर नीचे करके अल्टरनेट मैनर में होती है। तो अगर आपने चाइना रोज या हिबिस्कस फ्लावर देखा है तो यू विल बी नोइंग व्हाट आई एम सेइंग। ऑपोजिट साइड ऑफ लीफ वो स्ट्रक्चर होता है। तो ऑपोजिट साइड मतलब एक तरफ अगर लेफ्ट साइड है तो लीफ दूसरी तरफ राइट साइड होगी। तो कैलोट्रोपिस में ये आपको देखने को मिलेगा। और रोल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये बंच लाइक फ्लावरिंग लीव्स अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? बंच लाइक अरेंजमेंट ऑफ लीव स्ट्रक्चर होता है, राइट। अगर लीफ मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम तो यूजुअली हमें 3 टाइप के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मैंने भी बताया कि ये ऐसे सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लांट को हेल्प करते हैं जो कि खुद क्लाइम नहीं कर सकते, जिनकी स्टेम इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि एक लीफ लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और वो दीवार या किसी भी सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं, सो दैट प्लांट कैन ग्रो अपवर्ड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर।
स्पाइंस जिस लाइक इन कैक्टस, सो लीव्स हमारी स्पाइन में मॉडिफिकेशन कर लेती हैं डेजर्ट्स में, क्योंकि यहाँ वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अगर लीव्स रहेंगी तो वहाँ से वाटर लॉस ज़्यादा होगा प्लांट में, एंड प्लांट वुडंट बी एबल टू सर्वाइव इन डेजर्ट एरियाज। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एंड सो दैट द प्लांट कैन ग्रो इन डेजर्टी एरियाज, आपकी जो लीव्स होती हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो स्टेम से होता है। द यू मस्ट हैव सीन अ कैस्क्यूटा लाइक दिस, लाइक ये कैस्क्यूटा में स्पाइंस होते हैं। दीज स्पाइंस आर वेरी हेल्पफुल टू रिड्यूस वाटर स्कैरसिटी इन प्लांट। और ये स्टेम जो होती है दिस इज यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। फ्लैशी लीव्स में भी ये मॉडिफाइड कर लेते हैं अपने आप को, लाइक फॉर स्टोरेज इन अनियन एंड गार्लिक। सो दीज अनियन एंड गार्लिक्स आर अ फॉर्म ऑफ लीफ ऑफ अ प्लांट, राइट। तो आई थिंक दिस टॉपिक is very clear to you. Now in next video we will be talking about the inflorescences and flower, because this is a complicated topic which is given here because it has some of the formulas for flower structures, so that we will be discussing in upcoming next video. And if you have any confusion with the regarding today's video, you will be commenting down the question as I always say, and I'll be giving answer of your single questions, right? So don't hesitate to ask and clear your doubt always. As I say, just don't keep anything in your mind. So that's all for today. Don't forget to do like, share and subscribe to our channel, and give a lot of love and support, and do share with your friends so that they could also get the knowledge and information that is needed by them for preparation. Bye bye, see you, take care.